Can I start the session? Please नमस्कार सर. allow me in chat box. Yes sir. All participants, allow me in chat box. Can I start? Or wait, some people. Sorry, there are some technical glitch. And Namaskar, I'm Dinesh Pathak, host of this program, and those of all of you. Warm welcome to all of you in this important webinar. Topic is career prospects and progressions in the field of project management. We have three special people in this webinar. CEO and MD of Protocon BTG, Mr. Manish Khiloria ji. Welcome, sir. Mr. Sabir Saifi Loan and Mr. Sachin Kumar Mittal. Both are Protocon BTG alumni. Sabir is currently working with Tech Mahindra and Sachin is working with Reliance. Manish ji is IIT Roorkee alumni and BTG program is his baby. Training is the Manish ji paisa. We have 250 plus success stories yet. I would request to Manish ji to welcome our participants and our two BTG stars, Sabir and Sachin. Manish ji, please. Hello, good afternoon, everyone. My name is Manish Khiloria. I'm basically a civil engineer from IIT Roorkee, graduated in 1995. But aesthetically, I am a project management consultant. As I have never worked as a civil engineer, I have mostly worked all along my 28, 29 years of career in project management. Starting with Engineers India Limited, then subsequently 9 years with EIL, then Petrofac International in Sharjah, then 7-8 years with Qatar Petroleum, and subsequently Canada. For last 11 years, I have been dreaming of running this particular program, project management and control. And in last 11 years, I have developed some genius, and one of the genius is in front of you, Sabir Safi Loan. Another genius who is here today is Sachin Mittal. These are the people who are going to interact and give you all clarifications. Whatever in today's purpose of this meeting and webinar is to tell you about the opportunities lying in this particular field and the topic which has never been taught in any of the academic system. So I will leave the floor to Sabir and Sachin. Sabir and Sachin, very warm welcome. You are my brand ambassadors. You have been doing a great job as an ambassador to Protocon BTG program, but otherwise also in your career. And wish you all the best. Please give the clarity. Whatever guys are asking the question, tell them what is about project management and how you have been benefited with this program of Protocon BTG. So thank you guys. All the best. And Sabir, take it. It's over to you. Sachin, I would also like to see your face after a long time. Can you please open your video? Thank you for the warm welcome, sir. I think Sachin is having some issue with the camera. He's going to join soon, I guess. So carry on, Sabir. I will, sir. Thank you so much for the welcome. I am listening all the conversation. If you need my assistance, please feel free. But sure, I will be stopping my video and I will keep myself muted. But anytime, feel free. I am here. Sure, sir. Sure, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Manish ji, for your kind gesture. Now I would request to our alumni, Mr. Sabir and Sachin, for address the participants. I also request to all participants, please write your question in box. Our both guests will respond surely. I have surprise for all of you. Please listen session carefully. We'll meet you after some time at the same place. Thank you. Sabir and Sachin, please. Thank you, Dinesh ji. Thank you, Manish sir. Thank you everyone for welcoming us. As Manish sir has told you, that my name is Sabir and I have a colleague with me, Sachin.
We both met, Sachin and me, we both met each other in 2019 when luckily and fortunately we were able to find Proticon BTG. It was a mere luck actually how I found it, and it was a mere luck how Sachin found it. Sachin is going to tell about his journey on his own, but I'll start with my journey. But what I would like from each one of you that if you have any questions, please feel free to raise your hand or wait for me to end and ask questions, because what's going to make this session really helpful. Please mute your mics, everyone. Thank you. What is going to make this session really interesting is how we are going to, talk with each other, communicate with each other. You ask me questions, I'll try my best to answer them. And if I'll not be able to answer them, Sachin is there. And if even Sachin is not going to answer them, we have Manish sir with us. So I am a civil engineer like Manish sir. I have done my bachelor's in 2015, have around 10 years, 9 to 10 years of experience. I started my master's after completing my bachelor's along with my first job, which was as a structural engineer. Being a civil engineer, as most of you must be civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, I hope so. So as all of you, whenever you have passed your degree, you were not sure that what to do after that. Same was the case with me. I got placed from my campus and I got a job as structural engineer. I worked for a few months, didn't like it much. I worked as site engineer after that, same story. I started working as planning engineer. This all happened within a year. And after being a planning engineer, I was like, this is a field maybe I would like to explore more. Sorry, someone has muted me. Okay, so I started working as planning engineer from after first year of my completion of degree. But there was always that loophole, the visibility was not there. I was not clear with the scope that what I need to do. Because when I talk about project management or being a planning engineer, it's not as simple as we talk about it. It is about common sense, as Manish sir always says, that project management is about common sense, planning is about common sense. It is, but then you have to use that common sense. There is a very old phrase, all of you must be tired of hearing this, that common sense is very uncommon, and it actually proves here. You would see, if you are lucky enough to be in the project management field, you will see that how often you would have to use your common sense to deal with scenarios or issues. Someone has written, it won't matter that which year pass out you are. I'm going to answer at the end about all these things. Let me first introduce what project management is and how I came into it and how it has changed my life and how good it is. So as I'm saying that when I was going through this journey of planning engineer, being a planning engineer initially, what happened is I was never having clarity of where I'm going to lead myself with. Then in 2019, I saw an ad from IIT Roorkee and Proticon BTG that there is a course going on. And I actually, being honest with you, I thought it's a job, not a course. And I applied to it. I went to IIT Roorkee, I gave an interview, and cutting it short, finally, I joined Proticon BTG. I took a decision of joining Proticon BTG. And I thank Allah for that I have joined Proticon BTG, because it gave me the visibility and the clarity that what project management is all about. Project management is has a very vast scope. It is not limited to being a planning engineer or a project management consultant. There are lots of fields. If you are a civil engineer, you are more of a technical person. But when you come to the project management field, you become a consultant, or you become a person with the knowledge of project management. You can be an electrical engineer, you can be a mechanical engineer, civil engineer, or even sometimes any other professional. But the best part is here you deal with every kind of projects. There are project management requirements in every field. You would see IT projects, they need project management. There are what we call this as construction projects. They need project management. There are mechanical oil and gas projects. They need project management. Every single field in the world needs project management right now. Initially, around, I would say around 15 years back or 20 years back, there was no idea or, no visibility that how big of a field this is. But with passing time and from last 10 to 12 years, this field has been really booming. You go back to the internet and search on Google, which is the highest paying job right now, you would find two fields. One with the, yeah. Sir, actually, please talk language problem थोड़ा हिंदी में भी बता सकते हैं सर थोड़ा? बिल्कुल बता सकते हैं, हिंदी में भी बताएंगे.
अगर किसी को हिंदी नहीं समझ आएगी तो वो बताइएगा मुझे, मैं मिक्स कर देता हूँ दोनों चीजें, नो वरीज, ठीक है। तो अगर आप वापस जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं पे भी कि अभी विच वन इज द हाईएस्ट पेड, सॉरी जो भी कह रहे थे हिंदी में, अगर मैं बीच में स्किप करूं इंग्लिश की तरफ तो डोंट माइंड, मैं वापस आ जाऊंगा, तो जस्ट ट्राई टू बेयर विद मी प्लीज। तो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि कौन सा हाईएस्ट पेड जॉब है अभी भी, यू वुड फाइंड कपल ऑफ फील्ड्स, यू वुड फाइंड डाटा एनालिटिक्स, यू वुड फाइंड बिजनेस एनालिटिक्स, एंड टॉप ऑफ इट यू वुड फाइंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड आई कैन वाउच फॉर इट, इट इज actually. I have been with different companies from last 10 years. I have been with almost 4 companies, and I had an honor to work with Proticon BTG after completing my course with Proticon BTG for 4 years, actually. 3 years. They gave me an opportunity to work for India's first bullet train project, and I was one of the lead planning engineers for that project, along with other 21 professionals. So the opportunities are not less. We have less people all the time in project management. That's what I'm going to say. कम लोग हैं हमारे पास, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब दिनेश जी ने मुझे कॉल किया अभी कुछ दिन पहले, अराउंड 1 हफ्ता पहले, कि आप आइए, मनीष सर ने आपको बोला है कि आप आइए, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि मनीष सर ने मेरा नाम कहा, बिकॉज मनीष सर ने इतना कुछ दिया है, प्रोटिकॉन ने इतना कुछ दिया है कि अगर हम थोड़ा सा भी कुछ वापस दे पाए, इट विल बी अवर ऑनर। मुझे पता है सचिन जी जो हमारे हैं, आई कॉल हिम सचिन सर, इवन दो कि हम बैचमेट्स रहे हैं प्रोटिकॉन में, ही वाज फ्रॉम द टीचिंग बैकग्राउंड, you know, initially he did teaching, he was a really famous professor, actually really famous professor, but he took a chance to come into the field of project management, and he is shining right now like anything. He is working in Mumbai में काम कर रहे हैं Reliance में, और ऐसे ही हमारे साथ we had a batch of 41 folks, and everyone is really well settled. We have people working in Qatar right now. We have people working in different organizations in Dubai, different organizations in India, all over the world. And it has been a really successful batch. And there are other batches, Proticon के जो दूसरे batch थे वो भी काफी successful रहे। अब problem क्या है? Problem है कि मार्केट में इतनी चीजें हैं, इतने कोर्सेज हैं कि जो आपको वो कंटेंट नहीं दे पाते कि जो कंटेंट की आपको जरूरत है, बट प्रोटिकॉन वैसा नहीं है। I can personally vouch on it actually. Proticon, आपका जो कोर्स है, it would be the course around Proticon is completely around project management, and it gives you the professional outlook from the very beginning. ये आपको we can say as a project management consultant ही नहीं तैयार करते, as a professional, as a human being तैयार करते हैं। You would see there would be classes for communication also with the another great personality from Proticon. There would be classes, there would be sessions from, you know, different professionals who had experience of 25 years, 20 years, and उनके experience से कुछ सीखना वो अपने आप में एक बड़ी बात है, और आप ये सब सिर्फ 6 महीने में सीख रहे हो। The course has been designed in such a way कि हमारे पास एक बुक होती है जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। हमारे पास we have scope management, we have contract management, time management, cost management, we have different managements there. हमने ये चीजें सिर्फ टॉप में अपनी इंजीनियरिंग में सुनी होगी, बहुत इंजीनियरिंग में हमने ये चीजें ऊपर से सुनी होगी, लेकिन जब हम इस फील्ड में आते हैं ना, तो हम ये सिर्फ ये 10 और 12 मॉड्यूल्स जो हैं इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जब हम कल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो जो नॉलेज हमारे पास होती है बीइंग ए प्रोफेशनल, that actually keeps us aside from rest of the crowd. That's the best part. हमारे जो, मैं अपने ग्रुप की बात करूंगा, हम जो the group of 40 folks that we were there, वो इतनी अच्छी जगह क्यों है? रीजन बीइंग कि उनके पास वो चीज थी जो किसी के 25 साल के एक्सपीरियंस से मिली थी, 20 years एक्सपीरियंस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि प्रोटिकॉन एक ऐसी चीज ऑफर कर रहा है, तो मुझे तो कभी समझ आता है कि लोग आते क्यों नहीं है। आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू मनीष सर इस कोर्स में लोग आना इज गोइंग टू बी वेरी इजी, बट देन व्हेन इट हैपेंड, व्हाट वी यूज्ड टू सी इज दैट ग्रुप ऑफ पीपल 25, 30, 25, व्हेन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी लाइक 50, 100। द रीजन फॉर दैट इज कि प्रोटिकॉन 6 महीने के बाद आपको एक ऑन जॉब 100% गारंटी, इट्स नॉट लाइक अगर आपने 90% से अबव लाया तो आपको मिलेगा। It's a 100% guarantee that you will get, we can say, on-job training. You will be paid stipend for that after 6 months.
एंड उसमें आप काम करते करते सीखते हैं, एंड उसके दौरान आपकी प्लेसमेंट होती है। अगर प्लेसमेंट नहीं होती एंड इफ मनी सर लाइक्स यू, well, then you are going nowhere. You are going to stay in Proticon for some years after that. So, मेरी तरफ से this project management, my personal view of my personal experience of 10 years, if anyone who doesn't have any visibility after doing his bachelor's, that मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं साइट इंजीनियरिंग में जाऊं, मैं कोई मास्टर्स की डिग्री करूं, मैं कोई प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं, अगर आपके पास अभी क्लैरिटी नहीं है कि आपने करना क्या है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग रियली गुड, I don't think you will get any better opportunity than this one. This is my personal experience and personal saying. You would learn something being a professional in 6 months. You would learn how to work inside a big construction project within 6 months. You know, I'll not talk about construction, but even though कि आप में से जो भी join करेंगे, 90%, 95% will be, joining construction, oil and gas projects. But हमारे पास एक, we used to have a colleague with us, Abhishek. Sachin must be remembering him. He joined an IT company actually, and वो company काफी छोटी थी. But he was having such a knowledge of project management, because project management, as I told you, is not limited to construction. उसके पास ऐसी knowledge थी. He was such an experienced guy within these 6 months. He joined an IT company, and right now, after 5 years, he is the director of that company. I mean, it's a very short duration to become a director, but he is, because that organization was really small. He excelled like that. So there are a lot of opportunities in this field. It's just that you have to take that right step. And आपका यहाँ पे होना in this session, it itself says that आपने एक right step already उठा चुके हो आप लोग. Think about it, make your notes, research about it, ask questions as much as you want, but don't lose this opportunity, because some best opportunities knock at your door once, they don't knock again and again. I won't take much of your time because we don't have a long session here, and I'm not going to bore you enough. Now I will leave the floor to Sachin, my colleague, to talk with you. Thank you so much, everyone. Yeah, thank you so much, Sabir ji. Thank you so much, everyone, and welcome to everyone. Thank you so much, sir, and thank you, Dinesh sir. Am I audible? Yes, you are. Okay. Very good evening to all. As most of the things have been already explained by my colleague, Mr. Sabir, I am Sachin Kumar Mittal. Earlier, I used to be in teaching profession. Then, somewhere in 2019, in the same batch, actually, I got the opportunity to join Proticon BTG. Then, from teaching to like this project management field, in person I met with Mr. Manish sir. और वहां पे हमारा जो डिस्कशन हुआ बेसिकली दैट वाज दैट मच फ्रूटफुल दैट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई गॉट द पॉइंट कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन प्रोटेकॉन बीटीजी. नॉट जस्ट प्रोटेकॉन बीटीजी, इट वाज लाइक कि मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में जाना. आई थिंक इंग्लिश इज बेटर, हिंदी एंड इंग्लिश, सो विल स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस. From there onwards, it was like 1st July 2019. From there, I started my journey, and then during that 6 month of span, like my colleague already explained, कि it is not about a course कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एनरोल किया और आपको 6 महीने का ट्रेनिंग कर दिया एंड देन आपको ऐसे छोड़ दिया एंड यू जस्ट गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड डू समथिंग. इट वाज लाइक योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री में बेसिकली लैगिंग है. द फुल फॉर्म इटसेल्फ इज प्रोटेकॉन बीटीजी. बीटीजी means ki bridging the gap. What is the gap? The gap is basically your academics, where you understand the concepts and the theoretical knowledge. But when you come into the practical field, like आप इंडस्ट्री में जब जाते हैं वहां पे सर्व करते हैं, then you realize कि there is a gap, basically meeting the criteria or meeting the requirement. So this is the platform where you fill that gap through that BTG program in the field of project management. बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों आई, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 10-15 मिनट, देन वी विल मूव टू योर क्वेश्चन एंड आंसर. प्रोजेक्ट में क्या है कि वर्ल्ड में ऑलरेडी पहले से ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं. मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर लैगिंग द क्लैरिटी. प्रोजेक्ट तो सब कर रहे हैं. बेसिकली व्हाट इज प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज बेसिकली ए टाइम बाउंड एंड बजट बाउंड एंटिटी. लाइक आपको कुछ भी कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो एक टाइम बाउंड होता है कि आपको इतने टाइम लिमिट में करना है और इतने आपको कॉस्ट या बजट में करना है. बेसिकली See, earlier, like 15 years back, what people used to say कि इंडस्ट्री में जिसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, we just give the responsibility to that person कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू, like
they will deliver the project outcome, right? Project is nothing but like achieving your project objectives or goals, whatever is defined earlier. So you need to achieve those goals. तो अब ये टाइम बाउंड भी है एंड बजट बाउंड भी है आपका. Without the knowledge of proper project management, most of the projects were lagging in time, like time delay was there, or they were running over budget. Budget भी उनका more than the allocated हो जाता. तो because of that, फिर लोगों को समझ में आया और उसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज वर लाइक लूजिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस, दे वर अकरिंग लाइक फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा था और आपका मार्केट में आप देखेंगे तो रेपुटेशन लॉस भी है. अगर आपको प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपको एक साल में इतने बजट में प्रोजेक्ट करना है बट यू आर अनेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द डिफाइंड टाइम लिमिट एंड द एलोकेटेड बजट, तो आपका नाम खराब होगा. जैसे ही फिर आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप कितनी टॉप कंपनीज को जानते हैं, तो देर आर लाइक 10,000 और लाइक लैक्स टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन द मार्केट, लेकिन आप शायद 20, 25, 30 मैक्सिमम इंडस्ट्रीज का नाम ले सकते हैं बिकॉज दे आर डूइंग द प्रोजेक्ट डिलीवरी by the knowledge, right knowledge of project management. Project management is what? Like managing the project from its initiation phase to closing phase in a very effective and efficient manner. Means वो कहाँ से आएगा? That comes from your project management skills, where you learn कि आपको कैसे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग टू एंड कैसे आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना है with respect to all the parameters. अब ये all the parameters क्या होते हैं? Like my colleague already said कि it's not about कि आपको time bound and cost bound है, लेकिन ये कैसे आएगा? It comes from various like scope is there, scope management, procurement management, quality management, quality का भी आपको ध्यान रखना है, safety का ध्यान रखना है, your time management, cost management, risk management. Risk is also there. Risk is always there in any sort of project. तो रिस्क को भी कैसे मैनेज करना है? Only then when you manage all the parameters related to project, only then you will be able to complete the project within the time and with the allocated budget. So these are the main parameters. तो उसकी वजह से क्या हुआ? तो भी हम 15 to 20 years बैक बात कर रहे थे. तो then industry realize कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट जो डिले हो रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस एज वेल एज रेपुटेशन लॉसेस, कंपनी का रेपुटेशन भी जाता है कि कंपनी इज नॉट एबल टू डिलीवर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो नेक्स्ट टाइम उसे प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाले. दैट इज ट्रू. उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्स इनटू पिक्चर. उनके मन में आया कि अभी अगर हम इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल वाले लोग अगर लेंगे अपार्ट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी along with the project management skills coupled both, then they realized कि now we are achieving the our project objective in a very effective manner. तो वहां से हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है. अभी बात है कि पास्ट एक्सपीरियंस आपने ले लिया है बट यू आर नॉट अचीविंग what you are supposed to achieve because of the lack of the project management skills. So these are the main thing why project management is necessary. तो अभी during that वापस से आते हैं, during that 6 month of time period, उस टाइम पे जो grooming हुई that was not specific to particular field because project management is not specific to a single industry. It's basically diversity in itself, like starting from construction industry or chemical industry, or you can oil and gas industry, or you can say healthcare, construction, engineering, whatever industry you take, or you can take IT industry also. Everywhere project management skills are required in order to excel in your life. So these are the major parameters in terms of project management. अभी हम बात करते हैं कि हम आगे एक्सेल कैसे कर सकते हैं, हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज कैसे. लाइक आप एंट्री लेवल पे अगर आप इफ यू ज्वाइन एज ए प्रोजेक्ट like project management trainee, you might be fresher, or some of you might be like experienced also 1 or 2 years or 3 years of experience in a relevant field, like Sabir said ki electrical, chemical engineers, construction or mechanical engineers, or maybe so if you join in the early stage, you will be assigned with the project manager. Project manager is basically the key responsible person for executing that job, whatever the project is, either a construction project or mechanical project or whatever, irrespective of the nature of the project. So during the entry level, you will be assisting the project manager from its initiation phase to closing phase. Basically, just let me brief you. Every project crosses through 5 phases in its life cycle, which is initiation, planning, execution, monitoring and control, and last one is closing.
So during the entry level, what the project engineer will do? Project engineer means ki if you are in the project management field, you will be assisting the project manager from initiation to closing of the project. The most of your role will be like helping the project manager from initiation to closing, where you will be coordinating to the project executors, where you will learn the planning, scheduling, project coordination, quality aspects, procurement aspects, all the aspects related to projects you will learn over there during the initial phase. Then if you go up, then it will become like 2 or 3 or 4 years of experience. You will be assigned like assistant manager or junior manager, where you will be looking after the projects which is simple in nature, not that much complex, and there you will learn number of things because key responsible person will be you, and you will be handling the project by using your skill set of project management, where you are well versed with the softwares required, the communication skills you required, the soft skills as well as the skills of project management that is required for execution of the project. Then after that you will become the senior manager or the program manager. Program is nothing but like handling multiple projects related to each other. These are the program. Then you will be handling like program manager, and then maybe like 10, 15, 20 years down the line, you will be facing the executive levels responsibilities, and there you can handle it very easily. The reason being is once from the day one or very initial stage of your life, if you are already into project management field, then definitely a very good career opportunity is there in your lifespan. So you can ask any question if you want. Some question is available in inbox. Please read out and reply. Sachin ji and Sabir ji, please. Oh, okay. One question I'm seeing very, repeatedly is if there is an online course, as Dinesh ji has said that there's a possibility it can be next year. And किसी ने ये भी कहा है कि हम जॉब रिजाइन नहीं कर सकते और ज्वाइन नहीं कर सकते. Completely understand. Everyone has their family responsibilities. जब मैंने 2019 में ज्वाइन किया था, मुझे 4 साल हो गए थे जॉब करते हुए, and I was alhamdulillah doing a very good job at that time. काफी मैं JMC प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, और उसके बाद I took a step and I resigned and I joined, and the slope has been really good after that, alhamdulillah. And same for Sachin. Sachin was doing, as I told you, he's a very famous professor. I heard about him from a lot of students and colleagues where he was teaching. He was really good in that. काफी अच्छे थे. इन्होंने भी एक risk उठाया, and he took the opportunity, and it was a very good decision for him. Right now he is settled in Mumbai with his family. So online course आता है, that's up to Manish sir and team. वो कैसे करते हैं उसको deal, that will be good. But offline course में एक फायदा है, I mean my personal experience, बाकी आप लोगों की मर्जी है. ऑफलाइन कोर्स में एक फायदा है कि जो आपको इंटरेक्शन और जो आपको एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है ना, और वो हर दिन की कन्वर्सेशन, वो हर दिन का मनीष सर का वहां से घुसना, हाँ भाई शाम को ये करके देना 4 बजे तक, ये करना, या वो अजय सर का वो इंटरेक्शन या किसी का वो समझाना, ये अपने आप में एक फायदा होता है. उस चीज में सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है ना, एक्सपीरियंस से सीखना, वो सबसे बेस्ट पार्ट है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई भी आप जाइए ऑनलाइन आजकल, आई वुड से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज दैट यू कैन सी ऑनलाइन राइट नाउ, बट द प्रॉब्लम इज lack of experience in those courses. The problem is the design of curriculum in those courses. I'm not questioning any course right now, but I'm saying from my personal experience, यहाँ पे जो curriculum design किया गया है, जो prospectus है, जो experience है, जो grooming है, एक आपको एक बनी बनाई डिश बनी जाती है, आपको बस एक स्पून लाना है and you just have to feed yourself. It's like that. So offline is much better as compared to online, but हाँ, there are restrictions, family responsibilities होती है, हर एक की जिंदगी में होती है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो obviously बात है, उसके लिए अगर मनीष सर और टीम कुछ ऑनलाइन करे तो that's up to them. But my personal suggestion would be to go with offline course. एक और ने कहा, एक किसी हमारे one of our brother has spoken. He said that he has a 10 years gap. He has been professor.
So आपके सामने एक live example है. I think Sachin ji has been Hmm. professor for 5 years, I guess, right, Sachin ji? Yes, yes, that's right. 5 Yeah. years, 5 But years. he never That's right. achieved. I mean, he has achieved a lot when he was professor. But just ask him कि इन्होंने जितना उसके 4 साल बाद अचीव किया, क्या इन्होंने उन 5 सालों में अचीव किया था कि नहीं? It's, ये आपके it's सामने एक live multiple times. example है. Exactly. So वो आपके सामने है क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, you don't get you don't be restricted to teaching or to students. It's a very honorable field, honorable designation, I would say. But आपने इंजीनियरिंग की है, आप इंटेलिजेंट है, तो आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसको जस्ट डिप इनटू द प्लेटफॉर्म एंड गेट इट. सो इट वोंट मैटर आपका अगर गैप है. हाँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर विलिंग टू हार्ड वर्क, it's okay. If you have gap, you can join in. We have seen people, if Sachin ji would remember, जिन्होंने 4 साल जॉब ही नहीं की थी, हमारे साथ आए थे. And they are 4-5 साल जॉब नहीं की थी, कुछ नहीं किया था उन्होंने. They were बीटेक के बाद कुछ हुआ ही नहीं था. And they joined, they learned. उनको टाइम लगा, 15-20 दिन, 1 महीना एक्स्ट्रा लगा बाकी लोगों से, but they did it. So it won't matter. What matters is कि आप कितने डेडिकेटेड हैं और आप कितना करना चाहते हैं. अगर आप ज्यादा डेडिकेटेड है तो आप बहुत कम टाइम में भी अचीव कर सकते हैं. आई वुड रिमेम्बर दैट हमारे बैच में कुछ ऐसे थे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 6 months के बाद देयर इज एन ऑन जॉब ट्रेनिंग. हमारे बैच में कुछ ऐसे थे जो उनको 6 months जैसे ही कंप्लीट हुए थे, दे हैड जॉब ऑफर्स इन देयर हैंड्स. उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी थी. Even before 5 months, I think I remember. Even I think 10 to 12 guys were getting the job. I think in the month of November itself. In the month 4 of months, November itself, 5 yes. November. They had offers in 5th month itself. So वो चीज नहीं है. आपको ये आप कितना हार्ड वर्क करते हो उस पे मैटर करेगा. कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे जिसका सचिन जी वुड आंसर अस? Sir, can a student with non-tech background like BBA, BCom with experience of 2 years can apply? I think मैंने रिप्लाई कर दिया है. I don't think he has. मैंने रिप्लाई कर दिया है, लिख के रिप्लाई कर दिया, बिकॉज वो भी हमारे पास नहीं है कोई प्रोग्राम. बट जो शैलेश जी का सवाल था, अगर सचिन जी कुछ बोलें तो और शानदार होगा, क्योंकि सचिन जी खुद टीचर रहे हैं और शैलेश जी भी टीचर हैं. जी बिल्कुल. Okay, having experience of around 10 years, no? I think that was the question. Approx. Okay, so having experience of 10 years, see, sometimes it depends on you as well, because I want to try something different from that. It was not like that was not interesting job for me. I was enjoying that job also, but the thing was I want to achieve new heights in life. So I just went to Protegon BTG management, Manish sir. We spoke in person. So I still remember in the month of June I went to Noida and sir के पास उनके cabin में I was discussing. Then the picture actually that he showed me na, that is like picturized in my mind कि वो real में this is good for me. I'm going to achieve this in my life. So that's why I switched to that job. So आपको अगर देखना है, अगर टीचिंग फील्ड में मैं बोलूं, दैट इज ए वैसी ऑनरेबल एंड द नोबल प्रोफेशन. बट अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको लाइफ में लगता है कि बहुत ज्यादा अचीव करना है, तो आई थिंक यू नीड टू स्विच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वहां पे आप रहेंगे, दैट इज गुड, दैट इज फाइन. आप यू कैन क्रिएट योर ओन प्लेटफॉर्म ऑल्सो, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स ओवर देयर एज वेल. बट इन केस इफ यू वांट टू लाइक एक्सप्लोर द वर्ल्ड और यू वांट टू गो anywhere with that knowledge and see, वहां पे तो हम पर्टिकुलर फील्ड में स्पेसिफिक हो जाते हैं. लाइक आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैकेनिकल से रिलेटेड आई वाज वेरी गुड इन दैट और आई वाज डूइंग हैप्पीली, ऐसा नहीं है. बट द थिंग केम कि नहीं, मुझे आगे कुछ अचीव करना है, इंडस्ट्री में जाना है. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज लाइक साबिर सेड कि इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड. यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस फील्ड. वहां पे थोड़ा मेरे को कंस्ट्रेंट लगता था कि वी कैन नॉट अचीव अप टू दैट लेवल. तो दैट्स व्हाई आई स्विच. So I suggest you as well, if you are interested to explore your life to a new height and new level, I think you must go to Protegon BTG. Especially if possible, go to the offline course. That would be perfect. As Sachin just said, the project manager is not limited to planning. There is contract management, there is quantity surveying, there is सबसे पहले अभी delay analyst है, delay के projects. Protegon itself has a lot of delay projects right now. आप project management में 10-20 ऐसे ऑप्शंस हैं which you can explore. डिपेंड करेगा कि, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप जिस फील्ड में जाएंगे, मनीष सर एंड टीम दे विल लुक कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं, whether you would be good in delay analysis or you would be good in planning. They will direct you towards that.
आप उस फील्ड की तरफ जाएंगे, एंड उस फील्ड की तरफ जाना आपके इट विल बी वेरी बेनिफिट। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी जो मैंने अपनी बीटेक के बाद ऑब्जर्व की, हम सब लोग कुछ करना चाहते हैं, बट हम कहते हैं कि इफ देयर इज समवन हु कैन शो मी द पाथ, हम रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं, फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं, बट वो पाथ नहीं मिल पाता। एंड being honest with you, Proticon BTG can be that path for you if you guys want to do it. It's your choice. But it can be, because it has been that path for me and 250, as Dinesh said, other people. Okay, there's one question I would like to answer. What are the benefits of to choose project management over core engineering fields? See, I won't say benefits because I'm myself from engineering background. Structural engineering होती है, geotechnical engineers होते हैं, different engineers होते हैं, वो अपने अपने field में बहुत excel करते हैं. If they are specialized in that, mechanical engineers होते हैं, commissioning engineers होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में होते हैं. Now project management, if you want to, if you are good with communications, अगर आप good है भी नहीं तो आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बरक्स इन दोनों के साथ साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ आप डील करना चाहते हैं विद टीम जो साइट पे है, टीम जो ऑफिस में है, एक हायर मैनेजमेंट की टीम. जैसे मेरा आई ऑलवेज वांटेड टू डील विद हायर मैनेजमेंट, ठीक है, मुझे हायर मैनेजमेंट से बात करना अच्छा लगता है, या आई नो सचिन जी को भी अच्छा लगता है, वी ऑलवेज यूज्ड टू डिस्कस दिस. हायर मैनेजमेंट से बात करना, कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है. अगर आप साइट पे हैं ऑल इट टेक्स यू टाइम टू रीच देयर, बट जब आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में आते हैं ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हायर मैनेजमेंट के साथ डील करना, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू स्पीक आउट, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफिस से साइट देखना, साइट से ऑफिस देखना, दोनों चीजें देखना, एक चीज देखना, आपको एक ओपन ग्राउंड मिलता है, ओपन फील्ड मिलता है, आप एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है. और बीइंग इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड आप एक सेंटर पॉइंट बन जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के. तो यहाँ से साइट भी आपके साथ डील करती है, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी आपके साथ डील करते हैं, इंजीनियरिंग टीम भी आपके साथ डील करती है, यहाँ से हायर मैनेजमेंट भी आप ही से पूछ रही है, क्लाइंट्स भी आपसे पूछ रहे हैं, कोई कंसल्टेंट है वो भी आपसे पूछ, आप एक सेंटर पॉइंट बन जाते हो. सेंटर पॉइंट होने का फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जो चीज आप 3 साल में सीख सकते हैं वो आप 1 साल में सीखते हैं, क्योंकि आपको उतना काम करना पड़ता है. आराम ये आराम काम ऑफिस से होता है, सो साइट का वो झंझट भी नहीं होता. यूं तो आपको साइट जाना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ मैं फील्ड पे हूँ, ठीक है, तो मुझे साइट जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको साइट नहीं जाना पड़ेगा, डिपेंड करेगा आप किस इंडस्ट्री में होंगे, ठीक है. बट हाँ, आप एक सेंटर पॉइंट बनते हैं तो आपको इतनी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, इतना कुछ सीखना पड़ता है कि जो चीज आप 3 साल में सीख जाएंगे वो आप 1 साल में सीखें. So that would be for this one. I would like एक इसी में एक चीज और ऐड करूंगा मैं इसमें, लाइक यू आर सेइंग ना, वी कैन से कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली हार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वी कैन से in future when we say कि PMO, project management office, so that is the heart of the management of that basically organization. The reason being is project management का काम है, चाहे वो सिविल से रिलेटेड है, मैकेनिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से, IT से, जो भी रिलेटेड है, बेसिकली सब कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास आना ही. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नीड टू like coordinate with all the departments by getting into the details and then projection to the management. तो वहां से आपको एक मैनेजमेंट, हायर जो मैनेजमेंट है उसका भी एक ओवरलुक समझ में आता है कि उन्हें किस टाइप की रिक्वायरमेंट होती. दैट इज व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली. यहाँ पे अभी मैं 2-3 क्वेश्चन देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग से हैं. एक है बेसिकली ही इज फ्रॉम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, तो ही वाज सेइंग कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ द लाइक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट इंजीनियर. सो शायद शुभम जी हैं, शुभम जी का क्वेश्चन था, और उनका बाद में एक ये भी था कि एआई का इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड पे कुछ एआई का इम्पैक्ट आने वाला है. एंड एक और था कि क्या सैलरी का क्या इशू है, सैलरी ज्यादा है कि कम है, शायद ऐसा भी कुछ क्वेश्चन है. तो लेट मी टेल यू फ्रेंकली, आप गूगल कर लीजिए, यू विल फाइंड कि जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, इट्स नॉट अबाउट पीएमपी, इट्स अबाउट लर्निंग दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आइदर फ्रॉम प्रोटिकॉन और आइदर फ्रॉम एनीवेयर. अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल सेट के साथ हैं तो डेफिनेटली योर डिमांड इज हाई. जैसे कि मैंने अपनी उसमें भी आपको बताया अपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में कि प्रोजेक्ट्स फेल क्यों हुए. बेसिकली दे वर हैविंग द एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस उनके पास था, बट द राइट साइड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स दे वर लैगिंग इन दैट. बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट हमारे डिले हो रहे थे, कॉस्ट ओवर बजट हो जा रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी इज लूजिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज द रेपुटेशन इन द मार्केट. तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ही कल मान लीजिए बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेपुटेशन खराब हो गई है. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. जो कंपनीज थी बहुत पॉपुलर थी, ऑल ऑफ सडन बिकॉज ऑफ देयर लाइक लैक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरी ऑन टाइम, लाइक वो प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए, या फिर उनका एस्टिमेशन ही खराब हो गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दीज स्किल्स.
तो वो कंपनी को एक्चुअली जाना पड़ा मार्केट से, एंड नाउ दे आर बैंकरप्ट आल्सो। तो ऐसे भी सिनेरियोज हैं। तो अभी जो हाई डिमांड है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स की इसलिए है क्योंकि आपको अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का, अपना, कंट्री का, सबका बेसिकली क्या है, लॉस बचाना है इन टर्म्स ऑफ आइदर रेपुटेशन और फाइनेंशियल लॉस और मेनी शॉर्ट ऑफ, बेसिकली आप देख सकते हैं। तो दूसरा आपने बोला एआई का इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग डन थ्रू दी ब्रेन ओनली। तो आप बोलेंगे प्लानिंग एआई कर देगा आपको, तो वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के थ्रू कुछ कर सकता है, बट प्रोजेक्ट इज ऑलवेज स्पेसिफिक एंड यूनिक इन नेचर। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपका डिपेंड करता है। तो आपको एक्चुअली यू नीड टू यूज योर ब्रेन। हाँ, थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आएगा, आई वुड नॉट से कि इस पे बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन like having the project management skills and we are comparing it with AI, this is not fair at all right now। अभी तो ऐसा नहीं है, मे बी कभी 20 30 50 साल 100 साल बाद who knows about next 50 years। और सैलरी की आप, मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर आपके पास स्किल सेट है, एवरी इंडस्ट्री लाइक इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, लाइक आईटी है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, केमिकल, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पाइपलाइन इंडस्ट्री, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री। इवन आजकल तो हेल्थ इंडस्ट्री जो आपके चल रहे हैं, हेल्थ सेक्टर भी, उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट स्पेसिफिक टू सिंगल इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आपके पास अवेलेबल है, देन डेफिनेटली योर डिमांड इज हाई, और आपकी सैलरी with respect to others जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं but they don't know much about the project management, उनसे आपकी almost what I believe is 20 to 25% तो एक्स्ट्रा होने वाली है during the initial phase itself। Like Mr. Sabir said कि हमारा एक साथ में कलीग था, he was just fresher means he just pass out BTech 2019, right? Or down the line he got the opportunity and become the program manager at first I think, and then the director I think, project director। Though that was not that much like उतनी बड़ी L&T जितनी बड़ी कंपनी नहीं थी, but still like becoming a director at the company and just 6 months having a 6 to 8 years months of experience only, that's itself is a bigger achievement basically। I hope I have cleared your answer। Next। Yeah. There is one question, civil engineer. He has 9 years of site experience, and this question is from Raj. And Shubham has said the same thing, that he has experience from project engineering, project management. This answer is for both of you. अगर आपके पास already किसी project की knowledge है, whether it being 5 years or 10 years, it's an added advantage for your for this course. Actually, it's a very good advantage. The reason being कि आप project management अभी तक, जैसे Shubham has said, he has been project engineer X, Y, Z. He has been into 10 kind of fields. Being into project management, आप एक specific field अपना लेंगे, you will walk down that lane, okay? But ये जो सारा कुछ होगा ना, आपका experience, this will come along with you। ये आपका experience आपको एक better project management consultant, planning engineer, project controls engineer, contracts engineer बनने में बहुत help करेगा। So इसका ये होगा कि अगर आपके पास ये experience है, for you to get job after completing the Protocon course would be much easier। और मे भी आपको जॉब लेने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आजकल मनीष सर को बहुत जरूरत है। हाँ, राइट। तो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट अदर क्वेश्चन। आई एम a 2021 pass out civil engineer graduate। Since then I am working in US MNC in telecommunication। I have been promoted multiple times, 15 years। My current CTC is also good। Okay, if you want to take a switch after 15 years of experience and you actually want to explore the field of project management, because working in a US MNC, वहाँ पे भी आप you must be handling project management किसी तरीके का, but यहाँ पे जो आप project management की बात करेंगे, you will be a core project management who is intended to become a project manager। जैसे आपने किसी ने क्वेश्चन किया था PMP, I myself am PMP certified, Sachin is PMP certified, Manish sir is PGMP certified। आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, देन कम्स प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो उसके ऊपर होता है। उसके बाद आता है PFMP व्हिच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोफेशनल। सो मनीष सर इज ऑलरेडी PGMP, आई एम ऑलरेडी PMP। ये चीजें दे आर एडेड सर्टिफिकेशंस, दे आर वी कैन से द स्टार्स दैट यू कैन पुट ऑन योर शोल्डर्स। बट एट द एंड ऑफ द डे आप में कितनी नॉलेज है, आप में कितनी डेप्थ है, क्योंकि जब आपके प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा, आप कैसे उसको डिलीवर करेंगे वो मैटर करेगा। आप किसी कंपनी में जाए, आप ऐसे डिलीवर करें कि उस कंपनी के लोग आपको फिर से बुलाएं, वो अपने आप में एक अचीवमेंट होती है। ठीक है, जब आप कुछ ऐसा अचीव करते हैं, वो आप इसीलिए अचीव कर सकते हैं व्हेन यू डू सम हार्ड वर्क एंड व्हेन यू हैव दैट नॉलेज। और वो नॉलेज कैसे आएगी?
या तो आपको एक्सपीरियंस खुद गेन करना पड़ेगा ईयर बाय ईयर, या बी अलोंग विद द पीपल। कहते हैं ना वो, देयर इज अ फेमस कोट दैट इफ यू आर द इंटेलिजेंट पीपल इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम, है ना? Right. It's a very well quoted quote, I can say. So अगर आप किसी एक्सपीरियंस इंसान से सीख रहे हैं एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप एक्सपीरियंस इंसान से वो 2 दिन में सीख सकते हैं जो आप खुद काम करके 4 महीने में भी नहीं सीख सकते, बीइंग ऑनेस्ट विद यू। मेरा हमेशा ये एक्सपीरियंस रहा है। सो मेरी हमेशा आदत रहती है, मैं कहीं भी जाऊं, आई ट्राई टू सिट विद पीपल हु हैव मच मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस देन मी। आई एम जस्ट अ बिगिनर, आई एम ट्राइंग टू लर्न एवरी डे, सो आई ट्राई टू सिट विद पीपल हु हैव मच मोर नॉलेज देन मी। जैसे मैं हमेशा सचिन जी के साथ बैठता था, ही इज अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ मैकेनिकल फील्ड, सो इट्स ऑलवेज गुड। सो आपको यहाँ पे कंबाइंड एक्सपीरियंस तो 100 साल से ऊपर मिल रहा है, अगर इफ वी कंबाइन अजय सर, मनीष सर and Sridhar sir, everyone, it's a combined experience, so it's a very good Srinivas sir alone is having around 50 years of experience. Srinivas sir, MPC sir. Srinivas sir, oh my, he's a gem in himself, if you talk to him, आप उनसे बात करेंगे, वो अपने आप में एक दरिया है। रवि साहब, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल दिख रहा है, व्हाई टेक 6 months फॉर द कोर्स? प्लीज एक्सप्लेन द कोर्स स्ट्रक्चर इन द 6 months. अच्छा, why take 6 months of course? मेरे हिसाब से तो 6 months बहुत कम है। अगर आप प्रोटोकॉन बीटीजी बहुत 6 कम है, months 2 में years कर रहा है, में। to be honest, अगर आप प्रोटोकॉन बीटीजी 6 months में कर रहा है, you all should be very thankful, like I am or like Sachin is, that कि 6 months में complete हो रहा है। The reason for 6 months प्रोटोकॉन बीटीजी रख रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉन बीटीजी understands people. Protocon BTG किसी भी इंडिविजुअल पे if you will be in the Protocon BTG, if you will be lucky enough, आप देखेंगे कि आपके पास फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, वो आपके पास फाइनेंशियल बर्डन पड़ने नहीं देगा, क्योंकि जितना भी आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं फॉर द 6 months ऑफ ट्रेनिंग, आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग में उससे ज्यादा वापस मिलता है विद नेक्स्ट 6 months। और अगर आपको जॉब मिल Plus the value of time. Plus the value of time, basically. Value of time. Time is money. जॉब में 5th month में जॉब मिलती है, तो आप 3 या 2 महीने में ही उसको रिकवर कर पाते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सो 6 महीने में जो कोर्स करिकुलम है, मैंने आपको जैसे कहा था, मैं थोड़ा सा इसका इनपुट दूंगा। जैसे पिम बुक का मैंने कहा था, वी हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स देयर। वी हैव स्कोप मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, वी हैव इंटरफेस मैनेजमेंट, वी हैव डिफरेंट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। हमारे पास डिफरेंट अब आ गया आपके पास, अभी तक तो 10 थे जब हम थे, बट अब आ गया आपके पास स्क्रम मास्टर आ गया है, वो भी ऐड हो चुका है, अब 12 मॉड्यूल्स हो चुके हैं। सो हर मॉड्यूल, वो बुक बाय द वे 6000 पेज की है, वो बुक छोटी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मॉड्यूल कह रहा हूं, तो 6000 पेज आपको वैसे समझाना कि आप इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। प्रोटोकॉन बीटीजी पता है क्या करता है? ये आपको ऐसे सिखाता है कि जब आप कंपनी में जाए नेक्स्ट दिन, आपको किसी का वेट ना करना, वो आपको बोले कि भाई मुझे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, तो आपको वेट ना करना पड़े कि मैं पूछूं किसी से मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। आपको प्रोटोकॉन बीटीजी ने ऑलरेडी सिखाया होगा, आपके पास ऑलरेडी आपका एक सेटअप होगा आपके सिस्टम में। अब you just go there and you input your data and you go back to your manager, सर मैंने बना दी। And this has happened a lot. आप पहले दिन से हम अपने रिज्यूम में लिखते हैं, सचिन जी ने भी लिखा था, मैंने भी लिखा था, I remember, we can deliver from the very first day. Very first day. The reason for delivering from the very first day is कि आपके पास वो हर एक चीज तैयार होती है जो भी इंडस्ट्री को जरूरत है, एंड प्लस आपके पास 10x चीजें होती है जो इंडस्ट्री को जरूरत है पर उनको पता ही नहीं है, आप जाके इंडस्ट्री को सिखाते हैं। सो 6 महीने में इतने सारे मॉड्यूल्स कवर करना, वो आप अपने आप में एक अचीवमेंट है। सो आई थिंक 6 months आर वेरी लेस, बट अगर वो 6 months में हो रहा है, यू शुड बी वेरी हैप्पी दैट 6 months में हो रहा है, क्योंकि हमें हर एक मॉड्यूल कवर करना पड़ता है। हमें समझना पड़ता है कि स्कोप मैनेजमेंट है क्या। ऐसा नहीं है कि स्कोप मैनेजमेंट को उसका पुर्जा कैसे निकालते हैं, हमें वो सीखना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में लेटर्स कैसे लिखते हैं, हमें वो सीखना पड़ता है। शेड्यूल कैसे बनता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, हमें वो सब सीखना पड़ता है। इट टेक्स टाइम। और आपके पास असाइनमेंट्स दिए जाते हैं विच यू हैव टू रिपोर्ट बैक, उस पर आपको गलती करेंगे तो आपको सिखाया जाता है कि ये चीज सही करनी है। इंडिविजुअली ईच इंडिविजुअल को एक पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Actually, जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं ना, लाइक प्राइमेरा, P6, MSP एंड दिस एडवांस लेवल ऑफ MS Excel एंड MS Office, वो अगर आप बाहर जाएंगे तो 3 महीने तो आई थिंक उसी में लग जाएंगे वो उन्हें एक्सप्लेन करने में, ओनली सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। और हम सॉफ्टवेयर सिर्फ जो प्रोटोकॉल है, वो सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ आई थिंक लास्ट के महीने में सिखाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज दी जाएगी लास्ट के महीने। मनीष सर ऑलवेज यूज्ड टू से, अगर सचिन जी को याद हो, दैट यूजिंग सॉफ्टवेयर इज मंकीज वर्क। ठीक है, वो कोई भी बंदर चला सकता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ब्रेन, एवरीथिंग कम्स, बस उसमें प्लानिंग कैसे brain करते हैं सॉफ्टवेयर में, वो आप तक है। ओके, राइट। कोई और क्वेश्चन सर?
एक क्वेश्चन और दिख रहा ताजा विनय प्रकाश जी का। सर, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ 100 आवर्स थ्रू कोर्स एरा, विल इट बी हेल्पफुल? See, Coursera is a good platform, but ये कितना helpful होगा, I'm not so sure, because courses ऐसे बहुत सारे online available है. You know, जब मैं explore कर रहा था 2018 में, तब भी available थे, even though मैंने कोई course किया नहीं. But courses होना और courses में आपको वो knowledge, वो experience मिलना, ये एक बहुत different story है. ठीक है, कोर्सेज कोई भी बना देता है, कोर्सेज कैसे भी होते हैं, आपको क्या 100 आवर्स, दे वोंट केयर कि आप 100 आवर्स में पढ़ते हैं कि आपने बस खरीद के छोड़ दिया या फ्री का है, इट वोंट मैटर टू देम. बट यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कोर्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग योर लाइफ. हाँ, आपको वहां पे कुछ मे बी आपने कुछ ऐसा सीखा हो जो आपको चीज में भी सोच रहे जो पढ़ाए जाएंगे उनमें से 2 चीजें आपको पता हो, इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. एक राज की बात साबिर साहब, सचिन साहब, मैं बताना चाहता हूँ। हमारा कोर्स जी इस सर. समय अप्रोक्स हम लिख के देते हैं कि अप्रोक्स 450-100 आवर्स का है। मैंने मनीष जी से राइट रिक्वेस्ट सर. की एक दिन कि इसको थोड़ा हम लोग कम करते हैं। हालांकि 6 महीने में हमारी जॉब भी हम लगाने की बात करते हैं। 6 महीने में कोर्स नहीं पहले पूरा करते, 6 महीने विद इन 6 मंथ हम जॉब वाला काम भी कर लेते हैं। मनीष जी से हमने कहा कि थोड़ा इसको और थोड़ा शॉर्टन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर, कोर्स चले या न चले, नॉलेज पूरी देंगे, घंटे आप मत जोड़ा करो, घंटे बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, नॉलेज में समझौता नहीं करेंगे। दैट्स जेस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक 30 साल के एक्सपीरियंस का आदमी और एक थॉरो प्रोफेशनल जिसने पूरी दुनिया में काम किया है, वो व्यक्ति इस रूप में पेश आता है कि नहीं सर, नॉलेज तो पूरा देंगे। तो ये मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक सवाल लगातार आ रहा है, वो मुझे लगता है कि आप नहीं कहो, मैं मुझे ही कह देना चाहिए। ऑनलाइन पर फोकस काफी है साथियों का, तो मैं ऑनलाइन के बारे हाँ. में बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का, ऑफलाइन पर बहुत सारी बातें साबिर जी, सचिन जी ने बताई हैं कि ऑफलाइन क्यों फ्रूटफुल है। ऑनलाइन हम शुरू करना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में अभी थोड़ा हमें ऑनलाइन में टाइम लग रहा है, बिकॉज हमने इंफ्रा बना लिया है, रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी है। बावजूद इसके ऑनलाइन में हमारा एक दिन का एक स्टूडियो का प्रोडक्शन हार्डली 4 घंटे का है। ऑनलाइन का कोर्स हमने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बनाया वो 300 घंटे का बनाया है। तो 300 घंटे को 4 से भागा दीजिए, तो 75 डेज मिनिमम चाहिए हमें कोर्स तैयार करने के लिए। और हर और दिन तो दे नहीं ऑनलाइन पाएंगे. में हम एक कोर्स नहीं डिजाइन करेंगे। ऑनलाइन के लिए हमने तमाम कोर्स डिजाइन किए हैं, और कम से कम जब ऑनलाइन पे जाएंगे तो हमें 3-4 कोर्स एक साथ लॉन्च करना होगा, बिकॉज उसकी कॉस्ट है। फिर ऑनलाइन में जो बात विनय प्रकाश जी ने कही कि 100 घंटे का हमने गूगल का कोर्स किया है, वही कोर्स तो हम भी देंगे। ऑनलाइन में हम रिकॉर्डेड वीडियो देंगे वंस ए वीक, मे बी सैटरडे और संडे हम उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करेंगे, यही तो करेंगे ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क है। जिन भी साथियों को ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये ऑफलाइन हमारे सामने चुनौती है, परिवार है, बिल्कुल सही बात है, परिवार है तो हमें उस चैलेंज को तो सामना करना ही होगा, परिवार को तो नहीं छोड़ देंगे। बट कोर्स निश्चित तौर पर काम का है, और जो ऑफलाइन जितना काम का है वो ऑनलाइन उतना काम का नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है एज द हेड ऑफ ट्रेनिंग। एग्री कुछ सर. सवाल और आ गए हैं, सचिन साहब, साबिर साहब, इसको भी देखिए। एक सेकेंड. मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम फॉर अवर प्लेसेस, सो हाउ विल बी द अकोमोडेशन? भाई साहब, नोएडा में अकोमोडेशन का कोई इशू नहीं है। 7-8 हजार रुपए में लोग पीजी में रह रहे हैं, जिसमें डिनर भी शामिल है, ब्रेकफास्ट भी शामिल है। तो ये तो एकोमोडेशन तो बहुत बड़ा इशू है ही नहीं नोएडा में, कम से कम। और वहां पे एक आपको क्वेश्चन है जितना सर, एक क्वेश्चन है प्रिंस का. इज देयर एनी इफेक्ट ऑन सर्टिफिकेशन एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स एज नाउ देयर इज नो सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईआईटी रुड़की? तो दिनेश सर, अभी आईआईटी रुड़की से सर्टिफिकेशन नहीं है अपना? नहीं नहीं, आईआईटी रुड़की के साथ सर्टिफिकेशन हमारा है, बट आईआईटी रुड़की की कुछ शर्तें हैं, तो जब वो शर्तें हम नहीं पूरी कर पाएंगे तो हम फिर अपना ओके. करते हैं, क्योंकि हमारे और ओके आईआईटी के प्रोग्राम में क्या फर्क है। जॉब की गारंटी वहां हम ही देते हैं, आईआईटी में हम ही देते हैं। सर. कोर्स का एग्रीड सर इसमें. मेजर पोर्शन हम ही करते हैं। आईआईटी के कुछ शर्तें हैं जो हम नहीं पूरी कर पाते तो हम नहीं करते, और उसमें मेजर जो शर्त है वो ये है कि
मिनिमम 50 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन फिर फीस बढ़ जाती है। ओके हमारी फीस अभी 2 लाख ओके रुपए है, ओके और ओके आईआईटी के साथ जब हम जाते हैं तो 2,65,000 की फीस है। ओके ओके राइट। तो इसका आंसर मैं करता हूँ कि लाइक during our tenure in 2019 for the 6 month na, from July to December, right? At that time, the last 15 days were allocated to for actually IIT professors. They used to come and teach us, deliver the lectures. तो अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंगल से व्हाट आई पर्सनली फील, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, दैट वाज नॉट मच ऑफ दैट एक्चुअली यूजफुल, आई मस्ट से। ऐसा नहीं है कि नॉलेज खराब थी, नॉलेज वाज देयर, बट सिंस दे वर फ्रॉम द एकेडमिक्स बैकग्राउंड, तो मोस्ट ऑफ द बेसिकली द कोर्स टाइमलाइन वर जो प्रैक्टिकल थी, जो बेसिकली दैट हैड बीन एक्चुअली कंप्लीटेड बाय द प्रोटेकॉन बीटीजी स्टाफ, लाइक हमारे मनीष सर, अजय सर, लाइक श्रीवास सर, एमपी सिंह सर, और फिर सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड ऑल। तो ज्यादा तो वो था। बाकी आपको अगर ऑनेस्टली अगर देखें तो वो वाला ही मेजर यूजफुल है, क्योंकि आईटी के प्रोफेसर व्हाट दे डू जनरली डू, दे प्रिपेयर ए पीपीटी विद द डिटेल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, दैट इज परफेक्ट। अभी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में बोला है, हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर फील्ड। अब मान लीजिए सिविल के अगर एचओडी आते हैं या सिविल के प्रोफेसर आते हैं, तो व्हाट दे विल डू, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वो एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल्ड बेसिक। So this is what they used to do, but from my practical experience, 90% useful is from Protecon BTG itself. So that is more than sufficient. If it so, जैसा आपका क्वेश्चन था कि कोई डिफरेंस है क्या, I don't feel कि there will be any difference in that. बेसिकली मेजर नॉलेज जो मैंने आपको कहा था, मैंने स्टार्टिंग से या सचिन ने स्टार्टिंग से जिसकी बात की, वो था आपको एक एक्सपीरियंस से सीखना, यू नो, और सीखना कि एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वो प्रोटेकॉन बीटीजी ऑफिशियल से मिल रहा है। एज ही सेड, एकेडमिक नॉलेज आईआईटी ऑफिशियल से मिलती थी, बट फॉर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर फॉर करियर प्रोस्पेक्टस, आई थिंक प्रोटेकॉन हैज द कंप्लीट स्टाफ जिनसे हमने सीखा। आई थिंक हम आईटी की क्लास कभी मिस भी करते थे, बट हमने प्रोटेकॉन की कोई क्लास मिस नहीं की। और किसी ने पूछा सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं, देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर। आपने जो एक्सेल यूज किया है, वी यूज एडवांस एक्सेल, इट्स नॉट वेरी नॉर्मल, वी यूज एडवांस एक्सेल विद मैक्रोज एंड एवरीथिंग। हम लोग का प्राइमवेरा P6, MSP, PPTs, पावर BI, और कभी कभी टाइलॉस सॉफ्टवेयर, ये सब हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन डिपेंड्स आप किस ऑर्गेनाइजेशन, मैं जैसे अभी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे कभी कभी जीरा भी यूज करना पड़ता है, या किसी को कोई और स्मार्ट शीट प्रोजेक्ट है वो यूज करना पड़ता है। बट जब हम मेन सॉफ्टवेयर प्रोटेकॉन में सीखते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर यूज करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली इंडस्ट्री में आप देखेंगे ना, तो जिसे 8-10 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हु इज नॉट फ्रॉम, मतलब जैसे ऐसा ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है जो, तो दे आर इवन नॉट अवेयर अबाउट द एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज एंड ऑल। वहां पे तो हमारे साथ में, हमारे बैच में, इफ आई से ऑनेस्टली, 6 महीने के 5 महीने के कोर्स में इवन ए फ्रेशर was able to apply the VLOOKUP, HLOOKUP, match, index, advanced level even macros, advanced level formulas in Excel, advanced level of PPT. like आप फ्यूचर में देखेंगे तो like how you present yourself, that becomes very important. तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स MSP से, चाहे वो आपका पूरा ये आपका शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर हो, MSP और प्राइमावेरा बेसिक्स, इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको शायद 8-10 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप विदाउट ऐसे प्रिपरेशन जाते हैं, तो 8-10 साल के एक्सपीरियंस वाले दे आर अनेबल टू डिलीवर। लेकिन आप फ्रॉम द जीरो डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे यू आर एबल टू डिलीवर बिकॉज ऑफ दैट 6 मंथ का जो हार्ड वर्क होगा। एंड डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी इजी, क्योंकि हमारे लिए भी 6 से 8 घंटे की क्लास थी, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा जो प्रैक्टिकल बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क बेसिस पे होगा, जो आपको करना होगा। तो इट विल टेक अराउंड 10 to 12 आवर्स इन टोटलिटी इन अ डे। तो ऐसा नहीं होगा कि वो 6 मंथ की ट्रेनिंग ऐसी निकल जाएगी। अमीन ने कहा है, अमीन मोहम्मद ने, कि आईआईटी की अगर स्टैंप होगी सर्टिफिकेट पे, तो वो रिकॉग्निशन ज्यादा होगी। अमीन, आई वुड से वन थिंग, अगर आईआईटी की रिकॉग्निशन होगी, मेरे अकॉर्डिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क पड़ेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है। रिकॉग्निशन से चलो मैंने मान लिया, आपकी बात मान रहा हूँ, आपको एक जॉब मिल गई, अगर आपने वहां डिलीवर नहीं किया, दूसरी जगह क्या करोगे? बोलोगे मेरे पास रिकॉग्निशन है पर जॉब नहीं, तो कुछ आता नहीं है। बट मैटर्स इज, जब आपके पास एक एक बैकग्राउंड होता है ना, एक नॉलेज होते है, जब आप भरे होते हो ना, ये सर्टिफिकेशन, मेरी आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई स्वेयर, मेरी आज तक प्रोटेकॉन की सर्टिफिकेट किसी ने देखी नहीं।
और ना ही I write it actually Proticon की certificate. नहीं What नहीं happens is the experience of Proticon. Doesn't matter. What matters is experience and knowledge. जो आप होते हो ना, you stand out from the crowd, and with that's the most important thing. आपके साथ 100 लोग इंटरव्यू में होंगे, तो वही मैटर करता है, इंटरव्यू में तो वही मैटर करता है ना। आप आप इफ यू आर इंटरव्यू में गोइंग बोलोगे टू sir I have a कि मेरे stamp of पास IIT and then you'll be asked questions sir I don't know this, it won't matter. But my personal experience what matters is कि आप में डेप्थ कितनी है. I think I sir हो गए think questions. एक Was सवाल last और है, हु कैन ज्वाइन द कोर्स? तो शुभम वर्मा साहब पूछ रहे हैं, क्या who can शुभम join the वर्मा, course? हु कैन ज्वाइन द कोर्स? anyone I guess. हमारे टाइम पे ये था, अब कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ हो तो I don't know. नहीं हमारे टाइम मतलब पे तक बीटेक बीटेक जिसने भी किया हो, एमटेक जिसने भी किया हो, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। आपके पास जितना एक्सपीरियंस है उसके बाद कोर्स करेंगे तो उतनी बेटर पोजीशन मिलती है। आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो आप स्टार्टिंग पोजीशन पे जाके उसके बाद एक्सेल करते हैं विद इन कपल ऑफ इयर्स, ठीक है। तो any technical degree whether mechanical, civil, electrical, electronics and communication, आप किसी भी even signaling या कहीं से भी फील्ड से है, आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, और आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आई थिंक सीएसआईटी CSIT को भी शायद, हाँ नहीं, सीएसआईटी को अच्छा, भी इस बार अलाउ किया है। ओके ओके हमारी ओके ओके, कंडीशन ये होगी कि उनको जॉब कोर फील्ड में ही जहां हम देते हैं वहीं देंगे। ओके। अगर वो हमसे कहेंगे हमको टीसीएस में दिलाइए तो हम फिर उन्हें मना करेंगे। हमने डिप्लोमा भी इस बार अपने यहाँ अलाउ किया है कि अगर डिप्लोमा कोई 2-3 साल का एक्सपीरियंस वाला डिप्लोमा कोर का इंजीनियर है तो उसे भी हम ले लेंगे। अगर राइट। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई इशू नहीं है। इवन अब तो सर IT इंडस्ट्री में भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स मैंडेटरी कर दिया है, अनटिल अनलेस आप कोर कोडिंग में इसमें जाना चाहते हैं, बाकी उसमें हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स इज रिक्वायर्ड। सर मुझे तो सचिन भैया लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ नहीं है। किचन से शुरू एग्रीड, इवन होके घर में और भी है। सड़क तक पे है। बिल्कुल, राइट राइट। तो मेरे ख्याल से हम लोगों का टाइम ओवर कर गया है। मैं एक बात कहना चाहता था वो मैं कह देता हूं। आई डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा, किसका क्या फर्क पड़ेगा, बट मेरे पास एक स्कीम ये है कि जिन साथियों ने ये वेबिनार ज्वाइन किया है और अगर वो हमारा अपकमिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके मेल पर एक स्पेशल डिस्काउंट का कोड जाएगा। अगर वो अप्लाई करेंगे तो वो कोड लगा देंगे तो उनको लगभग 25,000 रुपए की छूट मिल जाएगी फीस में। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फीस 2 पार्ट का मामला है। 21,000 रुपए का हम डिस्काउंट दे पा रहे हैं और जब हम 21,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 3,780 रुपए का इसमें टैक्स का भी लाभ मिलता है। इट मीन्स कि 24780 ये डिस्काउंट का कोड आप सबकी मेल पे जाएगा। ये वेबिनार खत्म होगा, मेल पे आपको एक मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा और अप्लाई करने के लिए आप जब हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां उस कोड को लगा देंगे तो ये छूट आपके हिस्से में आ जाएगी। और यही मेरे लिए, मैंने जो शुरू में कहा था कि हमारे पास एक सरप्राइज है, वो इसीलिए है और यही सरप्राइज हम देना चाहते थे कि इसके लिए किसी से आपको बात नहीं करनी है। लगभग 24,780 रुपए की छूट आपको ऑटो मोड में फीस में मिल जाएगी। तो ये मुझे सर एक कहना था। क्वेश्चन और था कुछ किसी का शायद क्वेश्चन था सर, EMI का भी कुछ है क्या? मतलब आई थिंक यू कैन आंसर इट इन बेटर वे। नहीं, मैं उसे कर सकता हूँ। ईएमआई का इसलिए मैंने अभी लिखा है कि भाई मैं तो बैंक हूं ना, फाइनेंस कंपनी हूँ। हम एक छोटी सी कंपनी है, ट्रेनिंग करते हैं। आप दोनों जानते हो कि मनीष जी का पैशन है ये ट्रेनिंग, उनका बेबी है ये ट्रेनिंग, इसलिए अदरवाइज राइट ट्रेनिंग राइट हमारा राइट। लगातार घाटे में है। तो हम कहाँ से किस्तें भरवाएं, कैसे ले आए? वो टीचर्स जिनको हम लाके इंडस्ट्री के 25-25, 30-30, 40-40, जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं, श्रीवास सर का नाम आप ले रहे हैं, हाँ अब हम राइट राइट श्रीवास राइट। सर जैसे सीनियर आदमी को जिनका 45 से 50 साल का एक्सपीरियंस है, जब उनको हम घर से ले आते हैं, हम सारे लोग श्रीवास सर से डरते हैं, इंक्लूडिंग मनीष जी, अजय जी, क्योंकि वो इतने हम्बल पर्सन हैं, इतने सीनियर हैं। उनको लाते हैं तो हमें कुछ न तो उनको देना पड़ता है ना। हमारे पास राइट। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ट्रेनिंग देने आता हो जिसका एक्सपीरियंस 30 साल से कम का हो आज की तारीख में। राइट मैं एक बहुत चीज सारे ऐड करूँ, इंडस्ट्री के लोग हैं। इसमें एक चीज ऐड करूंगा सर। बेसिकली सचिन जी, मुझे लगता है इसलिए नहीं हो सकता प्रोटोकॉन का कि इतना लंबा 12 महीना एंड दिस थिंग, रीजन बीइंग कि प्रोटोकॉन
ट्रेनिंग से इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग। प्रोटोकॉन का अपना काम है जो प्लानिंग का, कंसल्टेंसी का करती बिल्कुल है, बिल्कुल। जिसकी बेस पे प्रोटोकॉन चलता है। ये जो ट्रेनिंग है ये इसलिए करते हैं जितना मुझे पता है, क्योंकि मनीष सर एक तो सिखाना चाहते हैं, टीम सिखाना चाहती है, और दूसरी चीज कि वो लड़के ही नहीं अवेलेबल है, वो इंजीनियर्स ही नहीं अवेलेबल जिनके पास इतनी नॉलेज हो। सो इनको पहले नॉलेज सिखानी पड़ती है, फिर उसमें से राइट राइट राइट। दो चार पांच ये खुद रख लेते हैं, बाकी बाकियों को देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, एज मनीष सर ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं, दूसरी कंपनीज में जाते हैं, तो प्रोटोकॉन का नाम भी जाता है कि कहाँ से सीखा है, Right. इतना कुछ प्रोटोकॉन से सीखा है। तो उसलिए ये कोर्स है ताकि लोग कुछ सीखें। सो राइट। अगर लॉस में करके ये कोर्स हम किसी को सिखा रहे हैं, मनीष सर एंड ऑल, प्रोटोकॉन किसी को सिखा रहा है, तो आई थिंक बेनिफिट अपने आप में ही एक चीज है। अभी तक हम लोग घाटे में हैं और प्रॉफिट में जाने की इच्छा भी नहीं है। बस ये है कि हमारा घाटा न हो, हमारी कॉस्ट बाहर आ जाए, जो मैन पावर लगी उसकी कॉस्ट बाहर आ जाए और हमें जो मेहमानों को देना होता है उनका पैसा आ जाए तो हम खुश हैं, उतने में ही खुश हैं। मनीष जी, अजय जी बेहद शानदार इंसान है और उनको बिल्कुल बिल्कुल ब्रेड बटर हमारा कंसल्टेंसी से चल रहा है और शानदार चल रहा है। जी, बिल्कुल कोई इशू नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत हो। प्रिंस चौधरी साहब ने साबिर साहब और सचिन साहब की लिंक्डइन आईडी ढूंढी थी और नहीं मिली थी, लेकिन राहुल ने भेज दी है, तो प्रिंस आप वहां से ले सकते हैं। सचिन जी की तो भेज दी है। हाँ हाँ हाँ, नो इश्यूज नो इश्यूज, यू कैन कनेक्ट एनी टाइम, नो इश्यूज। मेरा आप नाम व्हाट लिख इज सकते हैं पूरा व्हाट सर। इज द फीस? तो आता है। फीस 199,999 प्लस टैक्स फीस है साहब, शुभम वर्मा साहब। और हमारी वेबसाइट पर ये सब दर्ज है, वेबसाइट है probtg.com। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अब इसे क्लोज करना चाहिए। जी साबिर सर। साहब, सचिन साहब, बहुत थैंक यू आपको, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती समय निकाला। आप लोग अपना झंडा बुलंद रखिए और थैंक यू हम सर। संपर्क में रहेंगे। थैंक यू सो थैंक मच यू, सर। बिल्कुल जी सर। थैंक यू श्योर वेरी सर, मच, थैंक थैंक यू यू। ऑल, थैंक यू, थैंक यू।